اگر کسی شخص کے مرد ہو یا عورت اگر رمضان کے روزوں کی قضا باقی ہے تو اب شوال کے مہینے میں وہ شروعات قضا سے کریں یا شوال کے 6 روزوں سے کریں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کو ضروری ہے اور اس پر لازم یہ ہے کہ وہ رمضان کی قضا کو پہلے کریں، اس کے بعد 6 روزے رکھیں، اور بعض علماء نے یہ کہا کہ نہیں، اگر وہ شوال کے 6 روزے پہلے رکھتا ہے اور اس کے بعد رمضان کی قضا کرتا ہے تب بھی حرج نہیں۔ راجح قول اس میں دکھائی دیتا ہے کہ احتیاط اس میں ہے، بہتر یہ ہے کہ قضا پہلے کریں، اگر ممکن ہو آسان ہو قضا پہلے کریں، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھیں۔ لیکن اگر کسی کی مجبوری ہو، اس کو لازم قرار دینا بھی بظاہر صحیح نہیں لگتا ہے، بلکہ اگر کسی کے لیے مجبوری ہو تو وہ شوال کے روزے اگر اس کے فوت ہوتے ہوں یہ روزے رکھ لیں اور سال بھر اس کے پاس باقی ہے قضا کرنے کے لیے۔ لیکن اگر کسی کے لیے ممکن ہو، آسانی ہو، تو پہلے وہ قضا کریں اور اس کے بعد شوال کے روزے رکھیں۔ یہ زیادہ احتیاط ہے، زیادہ بہتر ہے اور اصول کے زیادہ نزدیک ہے۔ اس کی دلیلیں کیا ہیں؟ عثمان ابن موہب کہتے ہیں سمعت ابا ہریرہ وسألہ رجل فقال ان علی رمضان وانا اريد ان اتطوع فی العشر۔ ایک آدمی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ میرے رمضان کے روزے ابھی باقی ہیں، یعنی مجھ پر رمضان کی قضا ابھی باقی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ذوالحجہ کے جو 10 دن ہوتے ہیں ان میں روزے رکھوں۔ ولیال عشر جو فضیلت آئی ہے، ذوالحجہ کے 9 روزے ہوتے ہیں، ان کی فضیلت ہوتی ہے، 10واں عید کا دن ہوتا ہے، تو عرفہ سے پہلے تک پورے اور عرفہ کا دن۔ تو کہا کہ میرے رمضان کے ابھی قضا باقی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ذوالحجہ کے جو 9 دن ہیں ان میں نفل روزے رکھوں۔ قال لا بل ابدأ بحق اللہ فاقضہ ثم تطوع بعد ما شئت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ نہیں، بلکہ تو اللہ کے حق سے شروع کر، تیری اپنی چاہت سے نہیں۔ تیری پسند ہے کہ میں نفل روزے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ کا جو حق تیرے اوپر ہے اس سے شروعات کر، پہلے قضا کر اور اس کے فقدہ، اور اس کے بعد ثم تطوع بعد ما شئت، اس کے بعد جو نفل روزے رکھنا چاہتا ہے رکھ۔ اس کو امام البیہقی نے الکبریٰ میں روایت کیا ہے، السنن الکبریٰ میں روایت کیا ہے، تو اس سے السنن میں روایت کیا ہے اس کو، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ بہتر یہی ہے کہ ایک آدمی فرض روزوں کی قضا سے شروعات کریں اور اس کے بعد میں شوال کے روزے رکھے۔ اسی طرح سے مالک بن انس رضی اللہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ سئل سلیمان بن یسار و سعید بن المسیب، سلیمان ابن یسار اور سعید ابن مسیب ان سے پوچھا گیا، تابعین میں سے ہیں، عن رجل تطوع علیہ قضاء من رمضان، ایک آدمی نفل روزے رکھتا ہے جبکہ اس پر رمضان کی قضا باقی ہے، تو فرماتے ہیں فکرہ ذلک، انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا کہ وہ آدمی فرض قضا سے پہلے نفل روزے رکھتا ہے۔ یہاں پر مطلق روزے ہیں، شوال کا ذکر اس میں نہیں ہے، تو اس میں فصل اسی لیے بعض علماء نے کی، یہ بخاری کی روایت ہے، بعض علماء نے فصل کیا ہے، کہا کہ یہ شوال کے روزے ہیں خاص، اگر فوت ہونے کا ڈر ہو تو پہلے رکھ لے اور بعد میں قضا کریں، گنجائش نکلتی ہے، اس کے روزے فاسد تو نہیں ہوں گے، اور کسی نے بھی فساد کا ذکر نہیں کیا ہے، کراہت ذکر کیے، پسند نہیں کیا اس کو، لیکن اگر رکھ لیتا ہے ادا ہو جائے گا، رکھ لیتا ہے تو ادا ہوگا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ شوال کی فضیلت اس کو نہیں ملے گی، شوال کی فضیلت اس کو نہیں ملے گی، تو اس میں اختلاف ہے علماء کے درمیان، اس لیے کاہے کو آدمی پریشانی میں پڑے، کوشش یہ کرے کہ وہ یہ روزے پہلے قضا کر لیں اور اس کے بعد یہ روزے رکھیں۔ آپ کہیں گے کہ ہمارے تو روزے ہو گئے تو یہ مسئلہ آ کیوں رہا ہے؟ خواتین کا سوچیے، عورتوں کے ہر مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں اور ان چھٹی کے دنوں میں ان کے لیے نماز بھی حرام ہے اور روزے بھی حرام ہیں، لہٰذا رمضان کے روزے ان کے چھوٹ جاتے ہیں، اور کسی کے 7 کسی کے 10 تو اتنے سارے روزے اس کے باقی ہیں، پھر فوری طور پر رمضان کے بعد قضا اس کے لیے ذرا
मुश्किल होती है और फिर उसके बाद 6, तो मान लीजिए 10 दिन उसकी छुट्टी के हुए हैं और कुछ बीमार भी पड़ा तो फिर तो मुसीबत होगी उसके लिए, तो 15 दिन 10 दिन हो गए और ये 6 दिन 16 दिन उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो ये ख़वातीन के लिए मसला ये आता है। तो अगर उनके लिए क़ुव्वत है, अफजल यही है कि वो पहल करें क़ज़ा से और क़ज़ा के बाद ये 6 रोज़े रखें। लेकिन अगर नहीं हो सकता है और मजबूरी है तो फिर वो अगर 6 रोज़े रखें शव्वाल के पहले और उसके बाद साल भर में जैसे मौका मिलता है क़ज़ा करें। अल्लाह से उम्मीद है कि इसमें भी कोई हरज नहीं होगा इंशाअल्लाह, इसलिए कि इसके लिए ऐसी कोई सख्त दलील नहीं कि रोज़े नहीं होते हैं, इसकी कोई दलील हमारे इल्म में नहीं है, लेकिन राज यही है। इसलिए कि एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वमा तक़र्रबा इलैया, हदीस क़ुदसी है, वमा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैया मिम्मा अफ़्तरतु अलैहि, मेरे नज़दीक मेरे क़ुर्ब वाला अमल फ़र्ज़ के सिवा और दूसरा, यानी फ़र्ज़ के मुकाबले में और कोई अमल नहीं है। अल्लाह ताला क्या फरमाता है, बंदा मुझसे करीब हो सकता है तो सबसे ज़्यादा फ़र्ज़ से, फ़र्ज़ से बढ़कर मेरे करीब करने वाला और कोई अमल नहीं है। तो फ़र्ज़ मुक़द्दम है नफ़ल पर, फ़र्ज़ मुक़द्दम है नफ़ल पर, क़ज़ा फ़र्ज़ है और शव्वाल के 6 रोज़े क्या हैं, नफ़ल हैं, तो क़ज़ा मुक़द्दम होगी नफ़ल पर। लेकिन ये वुजूबन है या इस्तिहबाबन है, अब यहाँ फ़र्क होगा। लिहाजा राजिह यहाँ लगता है बचना चाहिए शव्वाल को मुक़द्दम करने से, लेकिन अगर मजबूरी में कोई करता है तो इंशाअल्लाह इसमें भी कोई हरज नहीं है। ये बुखारी की रिवायत है। बाज़ उलमा ने जिन्होंने इजाज़त दी है उन्होंने बाज़ दलाइल पेश किए हैं। उन्होंने कहा देखो, जैसे जिन लोगों ने मना किया है उन्होंने क्या कहा कि कोई आदमी अगर रमज़ान के रोज़े बाकी हैं और शव्वाल के रोज़े रखता है क़ज़ा से पहले, तो ये कहा ही नहीं जाएगा कि रमज़ान के रोज़े रखे फिर शव्वाल के, क्योंकि अभी तो रमज़ान के पूरे रखे ही नहीं हैं। हदीस में क्या है, जो आदमी रमज़ान के रोज़े रखे और उसके बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखे, तो अभी तो रमज़ान के रोज़े रखे ही नहीं, उसके बाकी हैं, ये कैसे कहा जाएगा कि इसने रमज़ान के रोज़े रखे और फिर शव्वाल के रख रहा है। ये उसी के लिए कहा जा सकता है जिसके रमज़ान के रोज़े मुकम्मल हुए हों और फिर वो शव्वाल की 6 रोज़े रखें। तो ये इस्तदलाल अपनी जगह बहुत कवी इस्तदलाल है, लेकिन इसमें यहाँ गुंजाइश ये होती है, उलमा ने यहाँ फ़र्क ये किया है। उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ तरतीब मुराद है या गिनती मुराद है। बाज़ उलमा ने कहा है तरतीब असल है कि रमज़ान के रोज़े रखें और उसके बाद गिनती उनकी पूरी करके फिर शव्वाल, और बाज़ उलमा ने कहा नहीं, वो बाद में भी अगर रखे, साल भर में जब रमज़ान की गिनती पूरी करता है तो वो सारी फजीलतें उसको हासिल हो जाएंगी जो रमज़ान के रोज़े रखने वाले के बारे में है। जो आदमी रमज़ान की क़ज़ा किसी उज़्र की वजह से बाद में करे तो क्या ये नहीं कहा जाएगा कि इसने रमज़ान के रोज़े रखे, वो साल में कभी भी कर सकता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने उसके लिए इजाज़त दी है, उसके लिए इजाज़त दी है कि वो साल भर में दूसरे अय्याम में कभी भी रोज़े रखे, इसलिए वो गुनाहगार नहीं हो सकता। उसके लिए शव्वाल की क़ैद नहीं है, उसके लिए शव्वाल की हद नहीं है, साल भर में वो कभी रोज़ा रख सकता है। लिहाजा अगर वो पहले शव्वाल के रोज़े रखे और बाद में रमज़ान की क़ज़ा करे तब भी कोई हरज दिखाई नहीं देता है। जैसे एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इदा मरिदल अब्दु औ साफरा कुतिब लहु मिथलु मा कान यअमलु मुकीमन सहीहा। अगर कोई आदमी बीमार हो या सफ़र में हो और उसका अमल छूट जाए, कुतिब लहु मिथलु मा कान यअमलु मुकीमन सहीहन, तो जो अमल सेहतमंदी के दौर में और मकाम पे रहकर वो करता था, सफ़र में छूट गया, बीमारी में छूट गया, उसके लिए वो अमल लिखा जाता है चाहे वो न करे। यानी उज़्र की बिना पर जिसका अमल छूटता है वो अमल छोड़ने वालों में शामिल नहीं होता है, वो अमल करने वालों में शामिल होता है। तो ये ऐब नहीं है कि किसी का किसी उज़्र की वजह से रमज़ान का रोज़ा छूटा हो। अगर वो आदमी बाद में भी क़ज़ा करता है और पहले इन रोज़ों को रखता है तब भी ऐसा आदमी वो सवाब पा सकता है, अल्लाह से इसकी उम्मीद है। हज़रत आयशा की रिवायत भी इसमें आखिरी बात है और उसके बाद बात ख़त्म कर रहा हूँ। बाज़ उलमा ने हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला की रिवायत से भी इस्तिदलाल किया है।
आयशा रदी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि वो कान यकून अलैया अस्सौम मिन रमज़ान, मेरे ऊपर रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा होती थी, बाकी रहते थे रोज़े। फ़मा अस्ततीउ अन अक़दिया इल्ला फ़ी शाबान, मैं ये रोज़े रख नहीं पाती थी, यहाँ तक कि उनकी क़ज़ा मैं शाबान में करती थी। शाबान का महीना रमज़ान से कितने महीने पहले होता है? हम लोगों को तो जनवरी फरवरी मालूम है। हाँ, रमज़ान से पहले का महीना है शाबान और रमज़ान। तो आप देखिए हज़रत आयशा की जो रमज़ान के महीने हैं, उसके बाद महीने आ रहे हैं, शव्वाल आ रही है, आ रहा, सब आ रहे हैं, और उसकी क़ज़ा कब करती थी? शाबान के महीने में, यानी रमज़ान से एक महीना पहले, क्योंकि अब इसके बाद वक्त बचा नहीं है। तो वो इतना फ़ासला रख के उसकी क़ज़ा करती थी। तो उलमा ने कहा कि क्या बीच में एक भी नफल रोज़ा नहीं रखती थी? यानी क्या यही माना जाएगा फिर? ताकि उनसे गुमान नहीं किया जा सकता है कि वो एक भी नफल रोज़ा नहीं रखती होंगी। और ख़ास तौर से इस एतबार से भी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ भी रोज़े से रहा करते थे, तो क्यों नहीं रखती थी? ऐसा उनके बारे में गुमान करने की बजाय यही माना जाएगा कि वो सारी फजीलत के जो रोज़े दरमियान में आते हैं उसका अहतमाम वो इंशाअल्लाह ज़रूर करती होंगी। बाद उलमा ने कहा दलील है कि वो करती थी। तो ये काफ़ी इख्तलाफ इसमें है। तो इसलिए ये दलाल मैंने बताना ज़रूरी समझे ताकि आपके जहन में दोनों बातें रहें। एक और रिवायत, ये बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, एक और रिवायत है जिसमें फरमाती हैं मा क़दैतु शैअन मिम्मा यकूनु अलैया मिन रमज़ान इल्ला फ़ी शाबान हत्ता क़ुबिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं रमज़ान के रोज़े जो मेरे ऊपर बाकी रहते थे, क़ज़ा करने होते थे, उनकी क़ज़ा मैं नहीं करती थी। कब तक? शाबान तक। शाबान में उनकी क़ज़ा करती थी, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई है। सारी ज़िंदगी मेरा मामूल यही था। कब तक? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तक। क्यों ऐसा करती थी? उलमा ने इसकी वजह बताई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की वजह से, कि अगर आपको बीवी की ख्वाहिश हो तो ये रोज़े से ना रहें। लेकिन शाबान का महीना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रोज़े रखते थे, नफल रोज़े। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से होते तो आपका ये मामूल नहीं था कि बीवी के करीब ज़्यादा जाएं, क्योंकि रोज़े में आदमी ये नहीं करता है। लिहाजा उन दिनों में उनको गनीमत जानकर हज़रत आयशा उनमें भी रोज़ा रखा करती थी। तो ये इल्लत उलमा ने ज़िक्र की है। तो इससे बात मालूम होती कि हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा रमज़ान के रोज़ों को मुअख्खर करती थी। कब तक? शाबान तक। तो अगर कोई आदमी ये नीयत रखे, अज़्म रखे कि मैं शाबान में इसकी क़ज़ा करूँगा तो गुनहगार नहीं होगा। बाज़ उलमा के कौल से मालूम होता है कि उसको जल्दी करना ज़रूरी है वरना गुनहगार होगा, उसी हाल में मर गया तो क्या। लेकिन ये बात सही नहीं है। एक आदमी जो इबादत का अज़्म रखता हो, क़ज़ा का अज़्म रखता हो और उसके लिए वक्त मुवस्सा हो, उसके लिए वसअत अल्लाह ने दी हो, तो हम कौन होते उसको तंग करने वाले? समझ में आ रही बात? हम उसको तंग नहीं कर सकते हैं। और एक मसला है कि एक आदमी के ऊपर क़ज़ा अगर फ़र्ज़ है तो उससे पहले नफल मुक़द्दम कर सकता है कि नहीं। एक दलील देता हूँ और बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में सोए। हज़रत बिलाल रदी अल्लाह तआला को ज़िम्मेदारी दी कि हमको जगाना, और आप लेट गए, आपकी आंख लग गई, हज़रत बिलाल की भी आंख लग गई। जब आंख खोली तो सूरज निकला हुआ था, फजर की नमाज। कहा कि जगाया क्यों नहीं? कहा कि जिसने आपको सुला दिया उसने मुझको भी नींद दे दी। इख्तियार थोड़ी ना है आदमी का, अदब के साथ कहा जिसने आपको सुलाया उसने मुझको भी नींद दे दी। और उसके बाद आपने कहा कि यहाँ से चलो, यहाँ शैतान का असर है, इतनी बड़ी इबादत हमसे छूट गई, चलो यहाँ से। कुछ आगे चले गए और वहाँ जाकर आप सारे सहाबा ने वज़ू किया और उसके बाद कुछ सहाबा ने सुन्नत जो फजर की होती है वो भी पढ़ी और उसके बाद फ़र्ज़ नमाज अदा की गई। इस हदीस में इस बात की दलील है कि अगर आदमी पर फ़र्ज़ हो, बाकी हो, तो उसमें किसी सबब से अगर कुछ ताख़ीर हो जाती है तो इसमें उस पर कोई गुनाह नहीं। वहाँ भी पढ़ सकते थे, फ़ौरन पढ़ो अभी,
نہیں، کہا کہ یہاں سے نکلو دوسری جگہ جائیں گے، آگے جا کر آپ نے قضا کی۔ نمبر 2، صحابہ میں سے جن لوگوں نے سنت نماز پڑھی، آپ غور کیجئے، باقی کیا ہے؟ فرض باقی ہے، اور سنت نماز کیا ہے؟ فرض سے چھوٹا کہ بڑا ہے؟ وہ نوافل میں شامل ہے، وہ زائد ہے، وہ فرض نہیں ہے۔ تو یہ نہیں کیا گیا کہ ابھی اپنے اوپر کیا ہے؟ فرض باقی ہے تو سنت کیوں پڑھ رہے ہیں، پہلے فرض پڑھو، تو ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ فرض باقی ہے، معلوم نہیں زندگی کا بھروسہ نہیں، ایسا سوچے وہاں پہ نہیں، بلکہ انہوں نے سنت پڑھی اور اس کے بعد فرض نماز بھی پڑھی۔ تو یہ کچھ دلائل ہیں جس میں غور کرنے سے لگتا ہے کہ اتنا سخت معاملہ نہیں ہے۔ اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ افضل یہ ہے کہ رمضان کی قضا کو مقدم کریں، لیکن لازم کہنے میں دل مطمئن نہیں ہے۔ اگرچہ بعض علماء نے، بڑے علماء نے بھی یہ بات کہی ہے، لیکن اس میں کوئی خاص ایسی صریح دلیل ہم کو نہیں ملتی ہے جس سے یہ حرام کر دیا جائے کہ یہ حرام ہے کہ ایک آدمی مقدم کرے شوال کو رمضان پر۔ حرام کی کوئی دلیل ہم کو نہیں ملتی ہے، یا روزوں کے فاسد ہونے کی دلیل ہم کو نہیں ملتی ہے۔ اگرچہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں کراہت ہے، افضل یہی ہے، لیکن اس کے لیے حرمت کی دلیل ہمارے علم میں نہیں ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو اس معاملے میں تھیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ صحیح بات تک پہنچنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائیں۔ جو باتیں میں نے کہی اگر صحیح ہیں تو اللہ رب العالمین قبول فرمائیں، اگر اس میں کوئی سمجھ میں غلطی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ صحیح پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔